સરકારના 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા માટે આપને અનેક અનેક અભિનંદન, વંદન. ગુજરાત હરખ અનુભવે છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ભલે પધાર્યા, ઘરે પધાર્યા. સાથે સ્વાગત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું. સહકારી ક્રાંતિને આવકારતા સરકારી ખેસ ફરકાવી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અભિવાદન થયું છે. માનનીય મંત્રી શ્રી ગૃહ અને સહકાર શ્રી અમિતભાઈ શાહનું સ્વાગત કરીએ છીએ. માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ અને કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાનું પણ ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે મંચ પર બિરાજમાન માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી સી.આર. પાટીલનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. ગુજરાતના સહકાર વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના માનનીય મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. મંચ પર ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરતા ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. સભાગૃહમાં બિરાજમાન માનનીય સંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, વર્ચ્યુઅલી કલોલ ખાતે જોડાયેલા ઇફકોના માનનીય ચેરમેન શ્રી દિલીપભાઈ સાંઘાણી તથા 3.5 લાખથી પણ વધુ મંડળીઓ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા 6 કરોડથી વધુ ખેડૂત મિત્રોનું પણ વિશેષ સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સ્વાગત કરીએ છીએ સરકારશ્રીના વરિષ્ઠ અધિકારીશ્રીઓનું, ગુજરાતના વરિષ્ઠ નેતાશ્રીઓનું અને આજે જેઓનો અવસર છે તેવા સહકારી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ, મંડળીઓ, જિલ્લા કક્ષાની મધ્યવર્તી બેન્કો, જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ, તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘ, 224 એપીએમસી, ગ્રામ્ય કક્ષાની દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને સેવા સહકારી મંડળીઓ, અધિકારીશ્રીઓ, અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને હોદ્દેદારોનું, પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પ્રતિનિધિશ્રીઓનું પણ આજના આ અવસરે ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ છીએ. સમાનીવ આકૃતિ સમાના હૃદયાનિ વહ समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहाति. हमारे इरादे समान हों, हमारी आकांक्षाएं भी समान हेतु हमें संगठित करें. संगच्छध्वम संवदध्वम संगवो मनांसी जानताम. सभी समान विचार, समान लक्ष्य को लेकर चलें, सभी के मन एक रूप बने. नमस्कार. ऋग्वेद के एकता में संवादिता का ये मंत्र सहकार व सहकारिता की भावना का उपयुक्त वर्णन करता है. कृषि, खेडूत कल्याण અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય સૌનું ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત કરે છે. દેશના સર્વપ્રથમ એવા આજના સહકારથી સમૃદ્ધિ સહકાર સંમેલનમાં, જેમાં આજે પ્રેરક ઉપસ્થિતિ છે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે આજના આ અવસરે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી તેઓ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરે. આજે ગુજરાતને આંગણે શાલ અર્પણ કરીને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી સી.આર. પાટીલ. અને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માને. આ સ્મૃતિ ચિહ્ન ગુજરાતના કૃષિ પેદાશો દર્શાવતું વિશિષ્ટ સ્મૃતિ ચિહ્ન છે.
માનનીય મંત્રીશ્રી સહકાર ગુજરાત શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માએ પદભાર સંભાળતાની સાથે જ ગુજરાતની સહકાર મંડળીઓ અને પ્રવૃત્તિઓ વિશેનો ચિતાર પ્રાપ્ત કરી નાવીન્યસભર મંડળીઓ સ્થાપવાની દિશામાં નક્કર આયોજન આરંભ્યું છે. આમંત્રિત કરીએ છીએ આપને માનનીય મંત્રીશ્રી આપના સ્વાગત સંબોધન માટે. આજની આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ અને ઐતિહાસિક સહકારિતા સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત એવા સહકારી પ્રવૃત્તિની ઓળખ સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ કક્ષાએ ઊભી થાય તે માટે વર્ષોથી પ્રયત્નશીલ. સહકારિતા માત્ર એક વ્યવસ્થા નહીં, કાયદાકીય જોગવાઈ નહીં, પરંતુ એક સંસ્કાર છે એવું દ્રઢપણે માનનાર દેશના પ્રાકૃતિક ખેતીના રોલ મોડેલ એવા સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં સહકારી પ્રવૃત્તિને વેગવંતી કરવા દેશને સહકાર મંત્રાલયની ભેટ આપનાર અને આ પ્રકારના દેશના પ્રથમ કહી શકાય એવા સહકારી સંમેલનમાં જેમની એક વૈશ્વિક લીડર તરીકેની ઓળખ ઊભી થઈ છે તેવા ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું આભાર હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સેવા સહકારી મંડળીના સભ્યથી લઈ સહકારી બેંકના ચેરમેન તરીકે જેમણે જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે, સહકારી પ્રવૃત્તિને ઊંડાણપૂર્વક સમજનાર અને માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના સ્વપ્નને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરવા માટે ઉત્તમ પ્રયત્ન કરનાર, સહકારી ચળવળને સુદૃઢ અને પારદર્શક કરવા માટે જેમનો સિંહ ફાળો છે તેવા ભારતના પ્રથમ સહકાર મંત્રી શ્રી અને ગૃહમંત્રી શ્રી માનનીય અમિતભાઈ શાહજીનું સ્વાગત કરું છું. એવી જ રીતે ગુજરાતની વિકાસ ગાથાના ઉત્તરોત્તર વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ એવા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલજીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. નવસારીના સાંસદ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ ઉપરાંત સહકારથી સમૃદ્ધિના આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારના સર્વે મંત્રીશ્રીઓ, સર્વે સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, સર્વે ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકારી ચળવળને વેગ આપનાર ગુજરાત રાજ્યની તમામ સહકારી સંસ્થાના આગેવાનશ્રીઓનું આજના કાર્યક્રમમાં હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. એવું કહેવાય કે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા સમગ્ર દેશમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ગર્વભેર જ્યારે ઉજવણી કરી રહ્યા છે ત્યારે મને આ પ્રસંગે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી જે નરેન્દ્ર મોદીજીએ પ્રાકૃતિક ખેતીને એક મિશન તરીકે અપનાવવા માટે આહવાન કર્યું છે ત્યારે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે સહકારથી સમૃદ્ધિની ભાવનાને વધુ મજબૂત કરવા માટે અને સહકારી ક્ષેત્રમાં નવી તકો ઊભી કરવા માટે તાજેતરમાં જ ફેબ્રુઆરી માસમાં સહકાર ખાતાની ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જેમાં ગુજરાતના પ્રાકૃતિક ખેતી કરનાર ખેડૂતોને સહકારી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડવો, સાથોસાથ યુવાનો અને મહિલાઓને પણ સહકારી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડવા માટે વિચાર કરવામાં આવ્યા હતા અને જ્યારે આજે તેઓ માટેની સહકારી મંડળીની રચના માટે પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશો અને માર્કેટિંગ માટે એક આગવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની દિશામાં ગુજરાત સહકાર વિભાગ પણ પ્રગતિશીલ છે. અંતમાં કહું તો દર ત્રીજો ગુજરાતી જ્યારે સહકારી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલો છે ત્યારે આવો સૌ સાથે મળીને સહકારથી સમૃદ્ધિની આ ચળવળને વેગવંતી બનાવીએ. ગુજરાતમાં સહકારી પ્રવૃત્તિને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન આપવા માટે વિશેષ ઉપસ્થિતિ આપણી વચ્ચે છે જેમની છે એવા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી, માનનીય કેન્દ્રીય અને સહકાર ગૃહમંત્રી શ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને અન્ય મહાનુભાવો અને સાથે સહકારી આગેવાનોનું પુનઃ સ્વાગત કરી વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. આભાર માનનીય મંત્રીશ્રી.
माननीय प्रधानमंत्री श्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को सिद्ध करने में सहकार क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान हेतु जो संकल्पबद्ध हैं, ऐसे माननीय केंद्रीय मंत्री गृह और सहकारिता श्री अमित भाई शाह को आमंत्रित करते हैं आपके मार्गदर्शक वक्तव्य के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गुजरात के ही सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी स्वास्थ्य और पेट्रोलियम रसायन मंत्री श्रीमान मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी, गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री श्री, वर्चुअल माध्यम से इफ्को के प्लांट पर उपस्थित इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी जी, उनकी पूरी टीम और देश भर के इफ्को के खाद्य वितरण केंद्र पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का संदेश ग्रहण करने के लिए आए हुए सारे किसान भाइयों बहनों और आज महात्मा मंदिर की इस सभागार में उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए सहकारिता आंदोलन के प्यारे पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर इस मंच से दो कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक सहकारिता से समृद्धि, ये सम्मेलन गुजरात के सभी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का, संचालकों का यहाँ होने जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्र के अंदर सहकारिता में प्राण फूंकने वाले सभी दिग्गज सहकारी नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। और दूसरा, आज ही के दिन मोदी जी ने जो कल्पना की है कि पानी भी प्रदूषित न हो, भूमि भी प्रदूषित न हो, हवा भी प्रदूषित न हो, ऐसे निरामय भारत की रचना के लिए एक और कदम आज उठाने जा रहे हैं। नैनो का तरल यूरिया, जो नैनो यूरिया तरल स्वरूप में इफ्को ने बनाया है, इसकी आज फॉर्मल देश भर में शुरुआत होने जा रही है। मित्रों, आप सब जैसे जानते हैं, गुजरात सहकारिता आंदोलन का आज पूरे देश भर में एक सफल मॉडल माना जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात ने सहकारिता की आत्मा को बचाए रखने का काम करा है। देश भर में बहुत कम प्रांत बचे हैं जहां पर पैक्स से लेकर एपेक्स तक सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलती हो, इसके सिद्धांतों के अनुरूप चलती हो और कमोबेश पारदर्शिता के साथ चलती हो। इसमें से हमारा गुजरात एक है। इसका सभी गुजरात के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गौरव है, मुझे भी गौरव है। आज यहाँ पर जब हम इकट्ठित हुए हैं, तब हम सबको याद है कि सहकारिता आंदोलन आजादी के समय से ही स्वावलंबन और स्वदेशी, ये दो स्तंभों के आधार पर सरदार पटेल, मोरारजी भाई देसाई, ये दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी थी। बाद में त्रिभुवनदास पटेल से लेकर वैकुंठ भाई मेहता से लेकर अनेक कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ते गए। पूरा जीवन उन्होंने सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया और इसी का कारण है सरदार पटेल और त्रिभुवन भाई ने बोया हुआ वो बीज आज एक वट वृक्ष बनकर विश्व और भारत के सामने आज खड़ा है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों को और देश भर के करोड़ों किसानों को एक बात कहना चाहता हूं
मैं बहुत कम आयु से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा। जब से जुड़ा तब से सहकारिता क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में की। और ये एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों करोड़ों किसान और अनेक क्षेत्र में काम करते हुए सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। और मित्रों, मंत्रालय बनने के साथ ही कई ऐसे सारे निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में लिए गए। सबसे पहले सालों से चीनी की मिलों वाले, गन्ना मिलों वालों का एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कोऑपरेटिव गन्ना मिलें थी, कि जब जो ज्यादा मुनाफा होता है और किसानों को वो ट्रांसफर करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। इस बजट के अंदर मोदी जी ने वो व्यवस्था समाप्त कर किसानों को 8,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा किया। सहकारिता आंदोलन की सारी हमारी इकाइयों पर सरचार्ज 12% लगता था, जबकि कंपनियों पर 7% लगता था। मोदी जी ने वो एनोमली को भी दूर किया और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का काम किया। इसी प्रकार से मैट का जो बदलाव था वो भी करने का काम किया। इसमें भी एनोमली थी। कंपनियों पर मैट 50% कर दिया गया था कई सालों से, मगर कोऑपरेटिव पर मैट घटाया नहीं गया था, वो 18.5% लगता था। इसी बजट के अंदर कोऑपरेटिव पर मैट घटाने का भी काम किया। 18.5% से इसको 15% कर हमें कंपनियों के समकक्ष लाने का काम किया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी। भारत सरकार की सारी योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। 3/2/22 के दिन एक सर्कुलर निकालकर भारत सरकार ने तय कर दिया कि क्रेडिट गारंटी फंड की जितनी भी योजना है अब कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भी नीचे पहुंच गए। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के सभी सचिवों का एक मीटिंग हुआ और भारत सरकार के सभी मंत्रालय में सहकारिता को कहां प्राथमिकता मिल सकती है, इसके लिए एक पूरे दिन की बैठक कर इसको परिणाम लक्षी बनाने का प्रयास किया गया। और कई फैसले अभी पाइपलाइन में हैं। इसी बजट में घोषणा की गई है कि पैक्स 65,000 से ज्यादा पैक्स जो आज कार्यरत हैं वो सभी को उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम भारत सरकार और नाबार्ड साथ में मिलकर करने वाले। एक क्रांतिकारी कदम हमारी त्रिस्तरीय कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम के लिए होने वाला है। पैक्स का भी एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा, अकाउंट का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार का होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार से होगा और नाबार्ड का भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। नाबार्ड के कंप्यूटर के अंदर हर पैक्स का दैनंदिन जो व्यापार होता है, जो रिकवरी होती है, वो सब नाबार्ड तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता इतनी आएगी कि पैक्स बंद करने का हमारा समय ही नहीं आएगा। नई सहकार नीति बनाने के लिए भी भारत सरकार ने सुझाव मांगना शुरू किए हैं। कई सारी सहकारी संस्थाओं के साथ हमने मीटिंग करी है, वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे हैं। एक सहकारिता का डेटा बैंक आज तक देश में नहीं था। पैक्स हो, मछली पालन की सहकारी समितियां हो, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हो, घास चारा इकट्ठा करने वाली महिलाओं की सहकारी समितियां हो, या फिर किसी भी प्रकार की सहकारिता समिति हो, उसका एक बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। अमूल के तत्वाधान में भारत सरकार ने
इनिशिएटिव लिया है। अमूल कुछ ही समय के अंदर एक पहली इसकी लेबोरेटरी गांधीनगर के हमारे अमूल फेड की डेयरी के अंदर बनाएगी और धीरे धीरे इसका विस्तार करते करते हर जिले में इसकी लेबोरेटरी बनने से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद लोगों के पास पहुंचेंगे तो किसान को इसका फायदा मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। एक बड़ा नेटवर्क भी बनने जा रहा है और कोऑपरेटिव बेस पर ये नेटवर्क बनेगा। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी परचेज के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी ऑडिट की सिस्टम को भी बदलने के लिए हम सभी राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हो जाएगी, सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता देश की जनता में बढ़ेगी और एक नए प्राण लेकर सहकारिता आंदोलन फिर से एक बार मोदी जी के $5 ट्रिलियन के स्वप्न को साकार करने के लिए, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए सज्ज होकर खड़ा होगा। आज नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में इसका भी आज यहाँ पर मोदी जी के हाथ से लोकार्पण होने वाला है। बहुत सारे फायदे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं बताने वाले हैं। इससे हमारी भूमि भी बचेगी, पानी भी बचेगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगी, किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और एक बैग की जगह 500 ml की छोटी सी बोतल अपने कुर्ते के पॉकेट में डालकर किसान घर पे जा पाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा श्रम भी इससे बचने वाला है। और यूरिया जब हम डालते हैं तब 25% यूरिया ही उत्पाद बढ़ाने के काम में आता है, 75% यूरिया हवा में पिघल जाता है। जब नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन करेंगे 99% यूरिया हमारे उत्पाद बढ़ाने के काम में आएगा और 100% उपज बढ़ाने का एक बहुत नया तरीका इफ्को के साइंटिस्टों ने ढूंढा है। मैं आज इस अवसर पर इफ्को को और उनकी इस प्रकल्प के अंदर जो साइंटिस्ट लगे हैं उनको, और इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मंत्री मनसुख भाई ने लिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका, आपके मार्गदर्शक वक्तव्य के लिए। नवी ज माटी नवा ज मूળ નવી મહેક છે આજે, સહકારથી સમૃદ્ધિનો મંત્ર ગુજરાત શ્વસે છે આજે। ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સર્વસમાવિષ્ટ વિકાસ સાધવા કર્તવ્યબદ્ધ છે। આપને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના વક્તવ્ય માટે। પાટનગર ગાંધીનગરને આંગણે ગુજરાતના ગૌરવવંતા સહકારી ક્ષેત્રના નવયુગના આરંભ સાથે રાજ્ય સરકારના સહકાર વિભાગ દ્વારા આયોજિત સહકારથી સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આત્મનિર્ભર ભારતના પ્રણેતા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ્ય સાંસદ તથા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી માન્ય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી CR પાટીલજી, ઉદ્યોગ તથા સહકારિતા મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, ઉપસ્થિત સૌ મારા મંત્રીમંડળના સૌ સભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ,
રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાંથી પધારેલા સહકાર ક્ષેત્રના સૌ અગ્રણીઓ, પ્રતિનિધિશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આજે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી જ્યારે સહકારી આગેવાનો અહીં પધાર્યા છે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને તેમના વડાપ્રધાન પદના કાર્યકાળના 8 વર્ષ પૂર્ણ કરવાના અંગે તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. આ 8 વર્ષમાં દેશના તમામ ક્ષેત્રોની કાર્યપ્રણાલીમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. હવે ગરીબોને તેનો હક માંગવાનો નથી પડતો, સીધો તેના ખાતામાં જમા થાય છે. આ 8 વર્ષમાં લોકોને અનુભૂતિ થઈ કે દેશના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર દેશ ચલાવવા નહીં પરંતુ દેશમાં બદલાવ લાવવાવાળી સરકાર લોકોને મળી છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના 8 વર્ષના કાર્યકાળમાં અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો થયા, જેમાંનો એક છે આઝાદી પછી દેશમાં વર્ષો પછી નવા સહકારિતા મંત્રાલયની શરૂઆત. આ નવા મંત્રાલયની જવાબદારી સહકાર ક્ષેત્રનો બહોળો અનુભવ, જ્ઞાન અને વહીવટી કુશળતા ધરાવતા આપણા સૌના શ્રી અમિતભાઈ શાહને સોંપવામાં આવી. નવા સહકારિતા મંત્રાલયની શરૂઆત થતાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના દિશાનિર્દેશનમાં શ્રી અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં સહકાર ક્ષેત્રમાં અનેકવિધ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાઈ રહ્યા છે, જેના પરિણામે પોટેન્શિયલવાળા સહકારી એકમોની પ્રગતિને વેગ મળી રહ્યો છે. તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે સહકારી બેંકને આરબીઆઈના દાયરામાં લાવવામાં આવી, જેથી સહકારી બેંકના ગવર્નન્સમાં સુધાર આવી રહ્યો છે અને ડિપોઝિટર્સને વિશ્વાસ પણ વધી રહ્યો છે. તાજેતરના કેન્દ્રીય બજેટમાં વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશની કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ માટે વૈકલ્પિક લઘુત્તમ કર ઘટાડીને 15% કરી આપ્યો છે. આ વર્ષના બજેટની જોગવાઈ મુજબ 1 થી 10 કરોડ સુધીની આવક ધરાવતી કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ પરનો સરચાર્જ 12%થી ઘટાડીને 7% કરી દેવામાં આવ્યો છે. દેશની પ્રાઇવેટ કંપનીઓ અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ બંને માટે સમાન કર લાગુ કરી લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ તૈયાર કરી આપવા માટે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈના આપણે સૌ આભારી છીએ. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત આઝાદી પહેલાં અસહકારમાં અગ્રીમ હતું, તે જ ગુજરાત આઝાદી પછી સહકાર ક્ષેત્રમાં અગ્રણી બન્યું છે. રાજ્યના સહકાર ક્ષેત્રમાં 83,000થી વધુ મંડળીઓ કાર્યરત છે. તેમાં અંદાજે 2,31,00,000 સભાસદો જોડાયેલા છે. આપણું સહકારિતા ક્ષેત્ર કેટલું વિશાળ છે તે આંકડા ઉપરથી ફલીભૂત થાય છે. કદાચ એટલે જ એવું કહી શકાય કે દર ત્રીજો ગુજરાતી સહકાર ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છે. ગુજરાત સહકારી પ્રવૃત્તિનું તીર્થ સ્થાન ગણાય છે. મિત્રો, સહકાર ક્ષેત્ર અને સંસ્થાઓ સીધી જ જન સાથે જોડાયેલી છે. એમાં પણ ખાસ કરીને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલી છે. ગ્રામ્ય અર્થતંત્રમાં ખેડૂતો, પશુપાલકો અને મહિલા ઉદ્યમીનો ફાળો મહત્વનો રહેલો છે. મહિલા સશક્તિકરણનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ ગુજરાતની સહકારિતા ક્ષેત્ર છે. આજે વડાપ્રધાન શ્રી ઇફકોના નેનો યુરિયાનું પણ લોન્ચિંગ કરવાના છે. ગુજરાતમાં આપણે ઇફકો સાથે સંયોજન કરીને ડ્રોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખેડૂતોના ખેતરમાં નેનો યુરિયા છંટકાવ કરવાની પહેલ કરવાના છે. આના પરિણામે ખેડૂતોને મજૂરીનો ખર્ચ ઘટશે, એક સરખું યુરિયા પાકને મળશે. એટલું જ નહીં, આયાતી યુરિયા પાછળ જે વિદેશી હુંડિયામણ ખર્ચ થતો હતો તે પણ બચી જશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારત માટે જે કોલ આપેલો છે તેને આ નેનો યુરિયાના ડ્રોન ટેકનોલોજીથી છંટકાવ દ્વારા ગુજરાત સરકાર સાકાર કરવા અગ્રેસર રહેશે. સેવા મંડળી, ક્રેડિટ મંડળી, મહિલા મંડળી, મચ્છી મંડળીને કારણે દલિત, ગરીબ, પછાત, ઉપેક્ષિત ખેડૂતો અને શ્રમિકો આર્થિક રીતે પગભર અને સમૃદ્ધ થયા છે. સહકારી પ્રવૃત્તિ દ્વારા ગુજરાતે માઇક્રો અને મેક્રો બંને સ્તરે પોતાની કડી કંડારી છે. સહકાર એ લોકશાહીનો આધાર છે અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્રનો ધબકાર છે. મિત્રો, આજે ગુજરાતમાં પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ ખેડૂતોને પ્રેરિત કરવાનું એક અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના સૂચન પ્રમાણે ગામમાં ઓછામાં ઓછા
75 પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતો તૈયાર કરવાની દિશામાં આપણે કામ આરંભ્યું છે. આ અભિયાનને સાર્થક કરવા માટે સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે પ્રાકૃતિક ખેતીથી થતી ખેતી પેદાશોના વેચાણમાં સહકાર ક્ષેત્રનો સહયોગ લઈને લોકલ પ્રોડક્ટને ગ્લોબલ માર્કેટ આપવાનો રાહ આપણને બતાવ્યો છે. પ્રાકૃતિક ખેતી ક્ષેત્રને પણ સહકાર ક્ષેત્રના આ યોગદાનથી મોડેલ સ્ટેટ બનશે તેવું હું માનું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ દેશમાં આત્મનિર્ભરતાની મુહિમ ચાલી રહી છે. આપણે સહકારના બળે આત્મનિર્ભર ગુજરાત દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારત સાકાર કરવું છે. વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી દેશ જ્યારે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે મને વિશ્વાસ છે કે સહકારિતાનું અમૃત દેશના આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે. એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો, આપના જોમવંતા સંબોધન માટે. सहकारी टाइटन उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को एक अभिनव पर्यावरण अनुकूल विश्व का सर्वप्रथम इफ्को नैनो तरल यूरिया का उत्पादन इकाई कलोल में शुरू करने जा रही है, जो विश्व भर के किसानों के लिए एक वरदान रहेगा. नैनो तरल यूरिया का ये साहस माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है. आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप रिमोट का बटन दबाकर इफ्को नैनो तरल यूरिया कलोल इकाई का विधिवत डिजिटल लॉन्चिंग करें. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका. और आइए अब देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास लक्ष्य मंत्र सहकार से समृद्धि का निरूपण करती एक फिल्म. ખેડૂતનું સ્મિત સદાય ટકી રહે અને વધતું રહે તેવા ઉમદા હેતુથી ગુજરાતમાં સહકારી પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થયો. એક તરફ મૂડીવાદ અને બીજી તરફ સામ્યવાદના મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યો સહકારવાદ. અને આ સહકારવાદને મળ્યો સરકારનો સહકાર અને શરૂ થઈ વિકાસવાદની નવી પરંપરા. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શબ્દોમાં કહીએ, सहकारिता एक कायदाकीय जोगवाई नहीं, सहकारिता एक बंधारणीय माળખું नहीं, पण सहकारिता एक स्पिरिट, सहकारिता एक संस्कार. પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ સહકારના આ સંસ્કાર અને સ્પિરિટને વધુ સક્ષમ, સહજ, સરળ અને સર્વવ્યાપક બનાવવા સહકારી પ્રવૃત્તિ અને સહકારી આંદોલનને રાષ્ટ્રવ્યાપી બનાવવા સહકાર મંત્રાલયની રચના કરી. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના વિઝનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની જવાબદારી મળી શ્રી અમિતભાઈ શાહને, કે જેઓ સહકારી ક્ષેત્રની ઊંડાણમાં સૂઝબૂઝ ધરાવે છે અને વહીવટી રીતે કુશાગ્ર છે. ભારતની એકતાના પર્યાય એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની દીર્ઘદ્રષ્ટિના કારણે વિદેશી ડેરી સામેના અસહકાર આંદોલન થકી ગુજરાતમાં દૂધ ક્ષેત્રે સહકારી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ અને જેમાં નિમિત્ત બન્યા ત્રિભુવનદાસ પટેલ જેવા તપસ્વી સહકારી આગેવાનો, 24 દૂધ સંઘો, 36 લાખ સભાસદો, દરરોજનું 2 થી 2.5 કરોડ લીટર જેટલા દૂધની પ્રાપ્તિ અને દૈનિક રૂપિયા 125 કરોડની પશુપાલકોની ચૂકવણી થકી થયો ગુજરાતની ગ્રામીણ આર્થિક સમૃદ્ધિમાં વધારો. પરિવારની બમણી આવકની સંકલ્પના ચરિતાર્થ થઈ. ઘરની આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં પુરુષ અને મહિલા બંનેની સહભાગીદારીતા થઈ. મહિલા સશક્તિકરણ અને સર્વાંગીણ સમૃદ્ધિના ફળ આ સહકારી અર્થતંત્રના કારણે પ્રાપ્ત થયા. પરિણામ સ્વરૂપ ઊભી થઈ વિકાસની પરંપરા કે જે દિયોદરથી વારાણસી અને વારાણસીથી વિદેશ સુધી પહોંચી રહી છે. ગુજરાતના સહકારી માળખા થકી ગુજરાતના ખેડૂતોને 0% વ્યાજે ટૂંકી મુદતનું ખેત ધિરાણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, જેનો લાભ
ગુજરાતના 25 લાખથી વધુ ખેડૂતોને મળી રહ્યો છે. ફોર ધ ફાર્મર, બાય ધ ફાર્મર અને ઓફ ધ ફાર્મર તરીકે કાર્ય કરતી રાજ્યની 224 બજાર સમિતિઓમાં ખેડૂત પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા 8ના બદલે 10 કરીને ખેડૂતના અવાજને આવકાર આપવામાં આવ્યો છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વપ્ન હતું કે તલાલાની કેરી તિરુવનંતપુરમમાં વેચાય અને આસામનું ખેત ઉત્પન્ન અમદાવાદમાં. આ દીર્ઘદ્રષ્ટિના પરિણામ સ્વરૂપ શરૂ થઈ ઈ નામ યોજના. આજે ગુજરાતની 122 બજાર સમિતિઓ ઈ નામ સાથે જોડાઈ છે. ગુજરાતની 13 ખાંડ સહકારી મંડળીઓમાં વાર્ષિક 102 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલી શેરડીનું પિલાણ થાય છે. આ ખાંડ સહકારી મંડળીઓ સાથે ગુજરાતના 4,50,000 ખેડૂતો જોડાયેલા છે. કોરોનાના કપરા કાળમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના હેઠળ શ્રમિકો, નાના વેપારીઓ અને કારીગરોને કોઈ પણ જાતના તારણ વિના રૂપિયા 2,500 કરોડની લોન આપવામાં આવી. આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પ્રાકૃતિક ખેતીને એક આંદોલન સ્વરૂપે સમગ્ર દેશમાં પ્રસરાવી રહ્યા છે. સહકારી માળખાએ આ વિચારને આચારમાં લાવી એક ઉચ્ચારે આ વાત સ્વીકારી છે અને પરિણામે ગુજરાતમાં પ્રાકૃતિક ખેત ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓની રચનાની શરૂઆત થઈ છે. ગુજરાતની સહકારી પ્રવૃત્તિ હવે બિનપરંપરાગત ક્ષેત્રોમાં આગળ વધી રહી છે અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ ગ્લાસગો ખાતે યોજાયેલ COP 26માં કરેલ સંકલ્પને પરિપૂર્ણ કરવામાં પોતાની નાની પણ મહત્વની ભૂમિકા અદા કરી છે. ગુજરાતના માનનીય સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલ સહકાર ખાતાની ચિંતન શિબિરમાં સહકારી ક્ષેત્રમાં નવા આયામો સર કરવા માટેનો રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. સહકારી પ્રવૃત્તિ ઘણી બધી વૈશ્વિક અને આર્થિક સમસ્યાઓના સમાધાનના શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહી છે. ત્યારે આવો સહકારના આ સ્પિરિટને છેવાડાના માનવી સુધી લઈ જઈને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના આત્મનિર્ભર ભારત અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતના મંત્રને ચરિતાર્થ કરીએ અને સહકાર અને સરકારના સુભગ સમન્વયથી આઝાદીના 75મા વર્ષે સહકારથી સમૃદ્ધિ લાવીએ. પ્રજા કાર્ય તું તત્કાર્ય, પ્રજા સૌખ્યમ તું તત્સુખમ, પ્રજા પ્રિયમ પ્રિયમ તસ્ય, સ્વહિતમ તું પ્રજાહિતમ प्रजार्थे तस्य, सर्वे स्वम आत्मार्थे न विधीयते. जिनके लिए प्रजा का सुख स्वयं से भी ऊपर है, ऐसी आपकी कार्यशैली से पूरा विश्व प्रभावित है और आज आप सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर हैं, जिसका लाभ गुजरात को तो पिछले 21 सालों से हुआ है. आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके प्रेरणादायी भाषण के लिए. भारत माता की गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित भाई शाह, मनसुख भाई मांडविया, संसद में मेरे साथी CR पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, सांसदगण, विधायकगण, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सहकारिता आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव, इफ्को प्रीमाइसिस में भी एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ पैरेलल चल रहा है,
वहाँ उपस्थित इफ्को के चेयरमैन दिलीप भाई, इफ्को के सभी साथी, देश भर में लाखों स्थानों पर आज सारे किसान गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूं। आज यहां हम सहकार से समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया, उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के ऐसे 6 गांव चिन्हित भी किए गए हैं जहां पूरी तरह से कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। साथियों, आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण करते हुए भी मैं सच्चे हृदय से बताता हूं कि मैं एक विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। जरा कल्पना कीजिए, आज जब किसान यूरिया लेने जाता है, उस दृश्य को जरा मन में लाइए और होने वाला क्या है उसका मैं वर्णन करता हूं, उसको जरा मन पे लाइए। अब यूरिया की एक बोरी, उसकी जितनी ताकत है, यानी यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। और कल्पना कीजिए, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। साथियों, ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक उस पर आज काम कर भी रहे हैं। साथियों, फर्टिलाइजर में इस नैनो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम हमने रखा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं चाहूंगा हर देशवासी ने समझना चाहिए। भारत में
फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। ऊपर से 7-8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। हमारे यहां जो बड़ी यूरिया की फैक्ट्रियां थी वो भी नई टेक्नोलॉजी के अभाव में बंद हो गई थी और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया और उसमें यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियां चालू भी हो चुकी है, उत्पादन हो रहा है और बाकी 3 भी बहुत ही जल्द अपना काम करना शुरू कर देगी। साथियों, फर्टिलाइजर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दशकों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता है। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में, गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा
खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी उनको 500 रुपए वहन करना होता था एक बैग पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो। अब हमारी सरकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये 2,500 रुपये महोदय, उनकी माननीय धर्मपत्नी सविता कोविंद जी तथा मंच पर सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे और इस स्वागत के पश्चात ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सरकार ने अपने पर लिया है, भारत के किसान को दिक्कत ना हो इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। गुजरात का किसान प्रगतिशील है, छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी अब मुड़ने लगा है। लाखों की तादाद में गुजरात में किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं।
साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार भी है। यह हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा है क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहां हमें मिला। पूज्य बापू ने सहकार के से स्वावलंबन का जो मार्ग दिखाया, उसको सरदार साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। और जब सहकारी की बात आती है, जैसे अमित भाई ने उल्लेख किया, वेंकुट भाई मेहता की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उनके नाम पर चलाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे भुला दिया गया था। इस बार हमने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उसको और ताकतवर बनाने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो हाउसिंग के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पहला प्रयोग हमारे यहां हुआ। ये जो हमारे पालड़ी में प्रीतम नगर है, वो प्रीतम नगर उसी का उदाहरण है। देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जागता उदाहरण है। साथियों, सहकारी क्षेत्र में अमूल ने एक अपनी पहचान बना दी। अमूल जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक ताकत का परिचय कराया है, एक पहचान बनाई है। गुजरात में डेयरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदोलन के सफलता का उदाहरण है। बीते सालों में तो फल, सब्जी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहकार का दायरा बढ़ा है। भाई और बहनों, सहकारिता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मॉडल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमारे सामने है। डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। 8 लाख करोड़ रुपए का दूध, और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। उसकी दूसरी तरफ जरा देखिए, गेहूं और धान का बाजार अगर हम मिलाकर के देखें तो वो दूध उत्पादन से भी कम है। यानी दूध अगर 8 लाख करोड़ का है तो गेहूं और धान का टोटल उससे भी कम है। आप देखिए दूध उत्पादन में हमारे देश ने कितनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसी तरह हम पशुपालन के पूरे सेक्टर को देखें तो ये 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। साथियों, बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े
कोऑपरेटिव्स रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, अगर हम कोई चीज याद कराते हैं तो किसी को लगता है कि हम किसी की आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई चीज को याद इसलिए करना होता है कि पहले क्या होता था। हमारे देश में, हमारे गुजरात में, कच्छ सौराष्ट्र में डेयरी करना, डेयरी का निर्माण करना, इस पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए थे। यानी एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटी में डाल दिया गया था। जब मैं यहां था तो हमने कहा भाई ये अमूल बढ़ रहा है तो कच्छ की डेयरी भी बढ़ सकती है, अमरेली की डेयरी भी बढ़ सकती है, हम रोक कर क्यों बैठे हैं। और आज गुजरात में चारों दिशा में डेयरी का क्षेत्र बहुत ताकत के साथ खड़ा हो गया। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जितना बच करके रहे बचने की कोशिश की और सहकारी क्षेत्रों को फलने फूलने की पूरी आजादी दी। सरकार यहां सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाती है, बाकी का काम या तो आप जैसे सारे हमारे सहकारी का क्षेत्र को समर्पित सारे हमारे साथी कर रहे हैं, या तो हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं। दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई और वैल्यू चेन उन्होंने खड़ी की है। साथियों, सबसे बड़ी बात, डेयरी सेक्टर में सबसे अधिक हमारे छोटे किसान हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी माताएं बहनें इस काम को संभालती हैं। गुजरात में लगभग 70 लाख बहनें आज इस मूवमेंट का हिस्सा है। 70 लाख बहनें ने 50 लाख से अधिक परिवार होंगे ही होंगे जी। 5,500 से अधिक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आज गुजरात में हमारी माताएं बहनें चला रही है। अमूल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को बनाने में भी गुजरात की हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक प्रकार से सहकारिता ने गुजरात में महिला उद्यमिता को नए आयाम दिए हैं। हम लिज्जत पापड़ तो जानते ही हैं। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताओं बहनों से शुरू किया गया काम आज एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। दुनिया भर में भारतीय पहुंचा होगा तो साथ में लिज्जत पापड़ भी पहुंचा होगा। और पहली बार मुझे गर्व इस बात का है कि इतने सालों से लिज्जत पापड़ का काम बढ़ा, इतना बढ़ा, लेकिन कभी किसी ने उसकी सूंघ नहीं ली। हमने पिछली बार पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया जिन्होंने इस लिज्जत पापड़ को, अब तो उनकी आयु 90 से ऊपर हो गई है, मूल गुजराती है, मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो माताजी आई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। यानी हमारी सहकारिता का स्पिरिट और हमारी माताओं बहनों का एक कौशल्य, अगर अमूल ब्रांड बन जाता है तो लिज्जत भी तो एक बार ब्रांड बन गया है। हमारी बहनों बेटियों के मैनेजमेंट कौशल को अगर देखना है तो कोऑपरेटिव्स में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर हम चल रहे हैं। ये मंत्र अपने आप में सहकार की आत्मा ही है। सहकार की सीमाओं के अंदर ही है ये मंत्र। इसलिए सहकार की स्पिरिट को
आजादी के अमृत काल की स्पिरिट से जोड़ने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया और कोशिश यही है कि देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं, उनको बाकी मार्केट प्लेयर के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएं। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े टैक्स में भी कटौती करके उन्हें राहत दी है। अमित भाई ने इसका वर्णन कम शब्दों में किया, लेकिन बहुत सारे कदम उठाए हमने। सरचार्ज की बात उन्होंने कही और पहले तो शिकायत रहती थी, इसमें भी सुधार करते हुए हमने सहकारी समितियों को किसान उत्पादक संघों के बराबर करके रख दिया। इससे सहकारी समितियों को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यही नहीं, सहकारी समितियों को, सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। गुजरात में इसमें बहुत प्रशंसनीय काम शुरू हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री था तो सहकारी क्षेत्र में, जो अमित भाई ने थोड़ा वर्णन किया, इनकम टैक्स लगता था और मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रहता था। और भारत सरकार में भी ये डिपार्टमेंट वो लोग संभालते थे जो खुद सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की बात मानी नहीं, देश के सहकारिता के क्षेत्र के लोगों की बात मानी नहीं। हमने जाकर के उस समस्या का भी समाधान कर दिया। साथियों, मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने लगभग 8 लाख किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किए हैं। बाकी बैंकों की तरह ही ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आज किसानों को मिल रही है। जब देश की सभी, जिसका अभी अमित भाई ने वर्णन किया, 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस, पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगी, कंप्यूटराइजेशन उसका हो जाएगा, तो हमारी कोऑपरेटिव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली है। इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इन सोसाइटीज में अधिकांश सदस्य किसान ही है। मुझे एक और खुशी की भी बात है, मुझे बीच में पता चला कि अब सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग भारत सरकार का जो जैम पोर्टल है, कुछ भी खरीदी करनी है तो जैम पोर्टल के माध्यम से करते हैं। उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आई है, गति बढ़ी है और दाम भी कम खर्चे में आवश्यकता पूरी हो रही है। भारत सरकार के जैम पोर्टल को सहकारी क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं सहकारी क्षेत्र के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सहकार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, सहयोग है, सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाने का है। यही आजादी के अमृत काल में भारत की सफलता की गारंटी है। हमारे यहां जिसको भी छोटा समझकर कम आंका गया, उसको अमृत काल में बड़ी ताकत बनाने पर हम काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को आज हर प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योगों, एमएसएमईज को भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे डिजिटल स्पेस में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा, देश के छोटे व्यापारियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। ये भारत के ई कॉमर्स मार्केट की संभावनाओं को बल देगा, जिसका गुजरात के छोटे व्यापारियों को भी
निश्चित रूप से लाभ होगा। साथियों, गुजरात व्यापार कारोबार की परंपरा से जुड़ा राज्य रहा है। अच्छे व्यापारी की कसौटी ये है कि वो मुश्किल हालत में भी कैसे व्यापार को अच्छे से संभालता है। सरकार की भी यही कसौटी होती है कि चुनौतियों के बीच वो कैसे समाधान निकालने के लिए नए नए तरीके खोजती है। ये जितने भी प्रावधान, जितने भी रिफॉर्म बीते वर्षों से हम देख रहे हैं, ये आपदा को अवसर में बदलने का ही हमारा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि सहकार की हमारी स्पिरिट हमें अपने संकल्पों की सिद्धि में मदद करेगी। और अभी एक बहुत बढ़िया वाक्य भूपेंद्र भाई ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले आजादी का एक शस्त्र था असहकार, आजादी के बाद समृद्धि का एक शस्त्र है सहकार। असहकार से सहकार तक की ये यात्रा समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारी राह है। इस राह पर आत्मविश्वास के साथ हम चले, देश भर के लोगों को भी इस पवित्र कार्य से हम जोड़े। गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट का विस्तार हिंदुस्तान के और क्षेत्रों में जितना ज्यादा हो, उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम आएगा। मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि सहकारी क्षेत्र के इन दिग्गजों के साथ आज मुझे मिलने का अवसर मिला, क्योंकि जब मैं गुजरात में था हमेशा उन्हें अपनी शिकायतें लेकर के आना पड़ता था, लेकिन आज वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं कि हम इतने कम समय में यहां पहुंच गए, हमने हमारी सोसाइटी को यहां ले गए, हमने हमारी संस्था को यहां पहुंचा दिया, पहले हमारा टर्नओवर इतना था, अब हमारा टर्नओवर इतना हो गया। बड़े गर्व के साथ छोटी छोटी सोसाइटी के लोग मिल जाते, कहते हैं हमने तो साहब सब कंप्यूटर पे चलाते हैं, सब हमारे यहाँ ऑनलाइन होने लगा है। ये जो बदलाव गुजरात के सहकारी क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो अपने आप में गर्व करने वाला है। मैं आज आपकी इस तपस्या को प्रणाम करता हूं, इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं, और आजादी के इतने 75 साल जब मना रहे हैं, तब जिसके बीज पहले बोए गए थे, आज वो वट वृक्ष बन करके गुजरात के सार्वजनिक जीवन में, रचनात्मक प्रवृत्ति में, आर्थिक व्यवस्था के आधार सहकारी प्रवृत्ति के रूप में बढ़ रहा है। वो अपने आप में एक प्रसन्नता का, आनंद का विषय में सबको प्रणाम करते हुए, हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नया संकल्प है, नई है ऊर्जा, नया है मंत्र, नया है प्राण। जो कहते हैं उसे करने का मादा रखते हैं। नए भारत के स्वप्नदृष्टा, प्रधान सेवक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। આવો સૌ સાથે મળી સહકારથી સમૃદ્ધિને વેગવંતો બનાવીએ। इसी संकल्प के साथ मंच पर विराजमान तथा सभागृह में उपस्थित अतिथिगण, आमंत्रित गण का धन्यवाद करते हैं। आज के इस देश के प्रथम सहकारથી समृद्धि सहकार सम्मेलन का समापन करते हैं। हिना सक्सेना को अनुमति दें। नमस्कार।
तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे गांधीनगर गुजरात से, महात्मा मंदिर सभागार से। और बेहद महत्वपूर्ण क्षण, सहकार से समृद्धि, ये जो नारा दिया गया लगभग 2 साल पहले जब केंद्र सरकार में एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और आप देखें आज किस तरह से सहकारिता समृद्धि का एक पर्याय, एक रास्ता बन चुकी है। और इसी की एक झलक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सहकार में आत्मनिर्भरता की ऊर्जा है और ये ऊर्जा कई क्षेत्रों में परिलक्षित हो रही है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो या आने वाले वक्त में जिस तरह से प्राकृतिक खेती का एक ऐसा क्षेत्र है, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आत्मनिर्भरता की पताका को सहकार के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये जो विकास की प्रक्रिया है, एक रचनात्मक विकास की प्रक्रिया है जो सहकारिता की वजह से आगे बढ़ रही है। और गुजरात एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जो लगातार सहकारिता के आंदोलन को, उसकी कोशिशों को आगे बढ़ाता रहा है और इसकी कई चमकती तस्वीरें भी हैं। प्रधानमंत्री ने खासकर डेयरी सेक्टर का जिक्र किया और कहा कि इसमें विशेषकर छोटे किसान लगे हुए हैं और खासकर महिलाएं गुजरात में लगी हुई हैं। 70 लाख महिलाएं इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे सशक्तिकरण की प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का भी एक मतलब, एक उसकी परिभाषा सहकारिता आंदोलन है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के जो बैंकों हैं उसका जिक्र किया कि जिस तरह की सरकारी पाबंदियां थी, करों का एक बोझ था, उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे कम किया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और ये बात भी कहा कि जो सहकारी समितियां हैं उसे किस तरह से बेहतर तरीके से बाजार से जोड़ा जाए और वो ज़्यादा प्रतियोगी बने, कॉम्पिटिटिव बने, इसकी भी कोशिशें सरकार ने की हैं। और इसका मतलब है कि सरकारी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि सहकारी जो क्षेत्र के जो तमाम उपक्रम हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा आज धड़कते हुए महसूस होते हैं, आज ज़्यादा बाजार में खड़े हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो छोटे किसान हैं उसको लेकर सरकार लगातार का फोकस रहा है नीतियों के स्तर पे, और डेयरी का क्षेत्र हो या फिर सहकारिता के दूसरे क्षेत्र हों, छोटे किसान हैं वो लगातार इससे जुड़े हैं और छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार नई नई नीतियां लेकर आई हैं और वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो आपूर्ति तंत्र है, जो सप्लाई चेन है, उसमें छोटे उद्योगों को किस तरह से एक प्रमुख हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही हैं और एमएसएमई सेक्टर को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं कैसे वो इस सप्लाई चेन का एक प्रमुख हिस्सा बने, इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। और उसका एक नतीजा है कि जो आपदा जो आई, जो चाहे कोविड-19 की स्थितियां हों, उसमें हमने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र जहां भारत उत्पादन या कहें उन तमाम तरह के उत्पादों को पहले नहीं निर्माण करता था, उसने अब निर्माण करना शुरू किया है। तो ये एक आपदा में अवसर की तरह है और सहकार और सहकारिता का पूरा आंदोलन अपने आप में इस आपदा को अवसर में बदलने की प्रेरणा देता है और रास्ता भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि का शस्त्र है सहकार और यही सहकार ने करके दिखाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर गुजरात से, महात्मा मंदिर सभागार से, जहां प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले सहकार से समृद्धि इस गोष्ठी को संबोधित किया है। और यहां पे जो तमाम 7,000 के आसपास प्रतिनिधि मौजूद थे, प्रतिभागी मौजूद थे जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सहकारिता की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया और ये साफ तौर पर कहा कि जो आज हम बेहतर भारत की तस्वीर बना रहे हैं, आत्मविश्वास भारत की तस्वीर को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सहकारिता एक बड़ी कड़ी के रूप में सामने आ सकता है। और इसके कई सारे उदाहरण गुजरात में खुद मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आत्मविश्वास से सहकार की राह पर हम चले और इसी का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। और कई कोशिशों का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से छोटे किसान, छोटे उत्पादक आज बेहतर स्थिति में हैं और सरकार की नीतियों का सीधे लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने जेम पोर्टल का उदाहरण दिया और कहा कि कैसे सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग जो तरह तरह के चीज़ों का उत्पादन करते हैं,
विनिर्माण क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो अब सीधे सरकार को अपना सामान उचित मूल्य पर बेच सकते हैं जेम पोर्टल के जरिए, और ये क्रांति की तरह है। उन्होंने कहा कि जो छोटे किसान जो सहकारी बैंकों से जुड़े हुए थे, और 8 लाख ऐसे किसानों को रुपए कार्ड जारी किया गया है, तो जिस तरह से जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसका भी हिस्सा अब ये किसान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस पे खासकर जोर दिया कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े जो सहकार की कोशिशें हैं, उसमें 65,000 किसानों ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, और उनका जब डिजिटलीकरण हो जाएगा, सरकार के डिजिटल तंत्र का जब वो हिस्सा बन जाएंगे, तो एक बड़ी शक्ति बनकर सामने उभरेंगे। और सहकार के अपने अलग अलग आयाम हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आज एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक विकास की कहानी वो अपने आप में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अपने संबोधन से पहले एक महत्वपूर्ण उपक्रम, जो नैनो यूरिया का जो प्लांट है, जो इफ्को के द्वारा कलोल में बनाया गया है, उसके प्लांट की प्रधानमंत्री ने आज देश को उसे समर्पित किया, और ये कहा कि किस तरह से आज ये तकनीक जो पहले वैश्विक स्तर पे उपलब्ध थी, लेकिन भारत में इसकी सुगबुगाहट नहीं थी, ये अपने आप में दिखाता है भारत किस तरह से तकनीकी स्तर पर आम लोगों की राहत के लिए नए नए उपाय कर रहा है, नए नए उपक्रम को लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे जो नैनो यूरिया प्लांट हैं आज एक स्थापित हुआ है, और आने वाले वक्त में ऐसे 8 प्लांट और लगेंगे, और ये जो नैनो तकनीक है ये भी आत्मनिर्भरता का जीता जागता और एक चमकदार उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि किस तरह से यूरिया की किल्लत होती थी, कालाबाजारी होती थी, जो 2014 में जब नीम कोटिंग यूरिया आना शुरू हुआ और सरकार ने जब इसको सुनिश्चित किया, तो हालात बिल्कुल बदल गए, और आज भी कई ऐसे उर्वरक के क्षेत्र में कई ऐसे उत्पाद हैं जिसको लेकर भारत को आयात करना पड़ता है। सरकार की कोशिश यही है कि इन उर्वरकों को आने वाले वक्त में भारत में निर्माण किया जाए, उसका उत्पादन किया जाए, और एक आत्मनिर्भरता की पताका यहाँ भी लहराई जाए। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि किस तरह से जो यूक्रेन रूस के संघर्ष की वजह से जो चाहे वो उर्वरकों की कई किस्में हैं, उसकी आपूर्ति की बाधा होना हो, कीमतों की बढ़ोतरी हो, सरकार ने यह तय किया कि किसानों का बोझ इस पे न पड़े। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से पिछले वित्त वर्ष में 1,60,000 करोड़ का जो वहन है, जो उसका जो पूरा बोझ है सरकार ने वहन किया, और इस साल ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है, यानी 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी सरकार उर्वरकों पे देने जा रही है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम सहकारिता के पूरे आंदोलन से जुड़े, सहकारिता की पूरी कोशिशों से जुड़े, और जो छोटे किसान हैं, छोटे पशुपालक हैं, उनके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री ने कही, अपनी बातें कही। और इसके साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में